In What is biochemistry? biochemistry includes like medicines and all those things. Sure. Medicines. Anyone can tell what is Not fully biochemistry? sure. Anyone can tell what is biochemistry? The reactions which occur in the cell. Biochemistry and biomolecules are somewhat related. All the reactions associated with the biomolecules comes under biochemistry. So when you're studying about proteins, carbohydrates, lipids, enzymes, okay, even metabolites, primary and secondary metabolites both, वो सब आते हैं biochemistry में. Okay, Sneha, so when you said medicines, it means it's just one small part of it. कि plant cells के अंदर जो secondary metabolites बनते हैं, we use them as medicines. That is one aspect of it. But in general, when you say biochemistry, it's a different thing. Okay. Okay. One last thing. Can anyone tell what is genetic engineering? सर आप बायोकेमिस्ट्री का सबका रिपीट कर दोगे क्या? थोड़ा आवाज कट हो गया. Okay. Biochemistry का मतलब है, see, chemistry you know very well. It's the study of atoms, molecules, and compounds. Okay. Pranav, you are telling it is a study of living matter. Not exactly, very, very broad answer. The living matter in the sense it's all about biomolecules, their structure and their functioning. And molecular biology is mainly associated with nucleic acids and their regulation. Okay, so biochemistry and molecular biology are somewhat related to each other. So when you say biochemistry, it takes into account all different types of biomolecules. Okay, like when you say proteins, proteins means there can be hormones, there can be enzymes, there will be pigments, catalysts, all different types of compounds which are proteins. Carbohydrates, so many different types are there: monosaccharides, disaccharides, trisaccharides, polysaccharides. Okay, homopolysaccharide, heteropolysaccharides, they are all part of biochemistry. Okay, so compounds, molecules, and atoms which are present within a cell, even coenzymes, cofactors, they also form a part of biomolecules. Is it clear now? Now, can you tell what is genetic engineering? The study of genes. That is only genetics, study of genes and their inheritance. That is only genetics. But if you say genetic engineering, what is that? What is genetic engineering? Making change in the genetic uh, pattern of the DNA for our use. Yes, exactly. Last time I gave the example of this Diksha and Gargi. You remember? What was the point I was trying to tell? One desirable feature in one organism, which I want in another organism. Okay, so Diksha was the first organism, Gargi was the second organism. There is one good gene in Diksha, which I want to put that in Gargi. Is this possible? Mostly with respect to plants. That is genetic engineering, manipulating the genes or the DNA to achieve the desired benefit for us. Okay, I gave the example of insulin also. Which are the cells that produce insulin in human beings? Human beings में insulin कौन से cells produce करते हैं? Beta. Beta cells, Beta cells of what? pancreas. Beta cells of the islets of Langerhans in pancreas. Okay. Okay, so we have come to that background. We have discussed about the different areas of biotechnology. I told you about this COVID-19 vaccine and all. I hope everybody is reading the newspapers and all with respect to these things. Right now, in the beginning, I was discussing about the same thing कि virus का अभी mutant variety या strain आ चुका है UK में. So now you are very well aware what is mutation, right? So whatever you have studied in science, apply that and understand the real situation. Correct? So areas of biotechnology includes all this. Now you know very well companies like this Bharat Biotech,
Okay, Pfizer, these companies are trying to make vaccines. बना चुके हैं, not trying, okay, but उसका 100% अभी रिजल्ट नहीं पता है and it has not yet reached the masses. पब्लिक में वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं किया है, but the results are being tested. There are volunteers who are ready to take the vaccine doses and see, उनको clinical human trials करके बोलते हैं. Okay, so all that is going on, so that is all a part of biotechnology. Okay, ये सब biotechnology के अंदर ही आते हैं. ठीक है, so like that we will see the different benefits of biotechnology also. Okay, when you say benefits, it's like, say, ultimately ये जो technology है, though it is involving life forms, ultimately it is technology, and technology is something which human beings create. Correct? No other organism on the earth will create a technology. They are occurring naturally, they are a result of evolution, but we are making use of them for our own benefit. So benefits का मतलब है कि हम लोग उसको अपने फायदे के लिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. Though the list is endless, बहुत ही लंबा लिस्ट है, but we'll see some of the main points which are given in your textbook. Okay, जैसे first one, it has become possible to increase the per hectare yield irrespective of limitations of crop land area. What do you mean by this point? Can anyone tell? इस पॉइंट का मतलब क्या है, किससे रिलेटेड है ये? Agriculture. Yes, it is associated with agriculture. So in a broader sense, in today's world, what is the actual problem in agriculture? Is there any problem, first of all? With respect to agriculture in today's world, is there any problem? Yes. हाँ. Yes. क्या problems है बताओ? Biotechnology has got lots एरियाज of कम पड़ रहे फूड ग्रो करने के लिए और लोग बढ़ रहे फूड खाने के लिए. yes, population. ये तो एक कॉमन सा पॉइंट है. We have seen that in life process too also, that the main underlying problem for all the other problems is increasing population, which is growing exponentially, and food is one of the basic necessities of any human being. तो उनको फूड अगर देना है तो कहाँ से देंगे? लाइक द फूड दैट कम्स इन आवर प्लेट, जो हम रोज खाते हैं, वो आता है कहाँ से? एग्रीकल्चरल फील्ड से. इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू विल से, बट अल्टीमेटली इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, तो without vegetarian food, without this food grains and these crops, the requirement of food cannot be satisfied. तो अभी चैलेंज ये है, प्रॉब्लम से भी बेटर वर्ड होगा चैलेंज, कि द एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज रिड्यूसिंग. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, स्कूल से टाइम से तुम लोग पढ़ रहे हो कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. डू यू एग्री विद दिस? ना, तुम लोग के स्कूल के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ रहेगा. Yes. तो व्हेन यू से इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, या भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसे करके बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन अवर कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. Now also from a layman's point of view, if you speak to anybody who is staying in a village, you see more than 10 में से 9 people ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम खेती बाड़ी करते हैं. But are all the farmers in our country happily doing their job? No. That satisfaction, that happiness is not there. There are many reasons for that. The first thing, weather conditions are unpredictable. एंड एग्रीकल्चर, जैसे अपने कंट्री में जो एग्रीकल्चर चलते आ रहे हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे काफी डिपेंडेड है. देयर वाज अ टाइम व्हेन फार्मर्स यूज्ड टू लुक एट द स्काई एंड डिसाइड द सोइंग टाइम, एंड 99.9% their predictions were correct. But in the past few decades, you know very well what is happening to the pollution levels and the climatic condition, climate change, greenhouse effect, global warming, you are well aware. तो अनसीजनल रेनफॉल्स हो रहे, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे, तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द फार्मर्स. सेकेंडली, because of this so much of loss, farmers are not able to go for good quality seeds and sowing materials. ये अल्टीमेटली अगर एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ बिजनेस. फार्मर्स अगर वो कर रहे हैं तो वो उनका रोजी रोटी उसी में चल रहा है, राइट? सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी इन दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, ऑब्वियसली वन विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स. कि फार्मर्स ने अगर पर किलो के हिसाब से 5 रुपए खर्चा किया है तो 5 रुपए ही अगर उसको वापस मिला तो इट्स लाइक अ नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेटमेंट फॉर देम.
उसका सर्वाइवल कैसे होगा? देयर हैज टू बी प्रॉफिट, विच इज व्हाट द फार्मर्स आर नॉट गेटिंग। फिर वो लोन्स लेते हैं, लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, लोन बढ़ता चला जाते हैं, राइट? दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम, and that's the reason they are forced to sell away their land, do some other work. And the young generation in the farmers family, they don't prefer to engage into agriculture. Education levels बढ़ गया तो उनको schooling college वगैरह अच्छे से हो रहे हैं, तो they don't prefer to continue agriculture. Okay, they migrate to the city areas कि दूसरा कुछ job कर लेंगे, अच्छा पैसे कमाएंगे करके. Majority of the population is into this now. So the land area available for agriculture is reducing, development हो रहा है. People are selling the land, वहां पे building खड़े हो रहे हैं. So in that increasing population on one side, decreasing agriculture area on the other side, कहाँ से खाना मिलेगा फिर? We in our country, we in a city like, in a town like Dombivli, in a city like Bombay, we get everything so nicely. हम लोग को कुछ भी खाना पीना है, the grains, the grocery, the food crops, everything we get nearby. But we should think कि वो कहाँ से आ रहे हैं. जरा सा बीच में कोई vegetable crops के दाम वगैरह बढ़ गए तो we discuss about that. But imagine that is a daily thing for the farmers. तो यहाँ पर in all these things, how can biotechnology help? There are many ways in which it can help. कि इतना ही लैंड एरिया में है, इतने ही इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे मिलेगा? So there are many examples we are going to see one by one. Okay, biotechnology helps in that. That is why there are specialized courses. एक इंस्टीट्यूट है रत्नागिरी के पास, दापोली करके एक जगह है. आर यू अवेयर अबाउट दैट प्लेस? दापोली, यस, गार्गिना ऐसे. Yes. Okay, so Dapoli, there is a place जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है which is called कोंकण कृषि विद्यापीठ, KKV. अगर उसके वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू कैन परस्यू BSc कोर्सेस, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, एंड देन यू कैन स्पेशलाइज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. तो उसमें तुम लोग ऐसे एक्सपर्ट बन सकते हो, एंड यू कैन गेट जॉब्स इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स. ओके, सो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स के भी नाम हमने स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो यू नो वेरी वेल हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू इन योर करियर ऑल्सो. कि अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी जैसे काम में, प्लस एग्रीकल्चर में भी कंट्रीब्यूशन देना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स फॉर यू. तो कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे? ओके, दैट इज वेयर बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प. सेकेंडली, एक्सपेंसेस ऑन डिसीज कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर में जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज है फार्मर्स के लिए, वो है दैट द प्लांट्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ डिसीजेस. Diseases caused by mainly 3 agents. Can you tell which are the 3 plant diseases? कौन से 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में डिसीज कर सकते हैं? Pest. सॉरी, Pest. पेस्ट अलग है, डिसीज अलग है, पेस्ट अलग है. पेस्ट का मतलब है Potentially the crop. See, पेस्ट का मतलब है एनी एनिमल, वेदर इट इज एन इंसेक्ट और नॉट, insects. उसको पेस्ट बोलते हैं. वो हाँ. डायरेक्टली फिजिकली आकर क्रॉप्स को खा रहे हैं, लीव्स तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, दैट्स अ पेस्ट. डिसीज मतलब अलग है. डिसीज मतलब जैसे हमें बीमारी होता है, इन्फेक्शन होते हैं, तो प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हो रहे हैं. So that is caused by which agents mainly? Virus. Virus, Bacteria. bacteria. Thirdly, और Fungi. फंजाई. सबसे ज्यादा तो फंजाई. ओके, तो फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगल डिसीज. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगल डिसीज. ओके, पाउडरी मिल्ड्यू, फंगल डिसीज. रस्ट डिसीज, स्मट डिसीज. ओके, ऐसे कितने सारे बीमारी है जो फंगस के वजह से होते हैं प्लांट्स में. बैक्टीरियल डिसीज अगर बोला जाए तो यू हैव सिट्रस कैंकर, ओके, लीफ कर्ल डिसीज, विल्ट डिसीज, टोबैको मोजाइक वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस, ये सब वायरल डिसीजेस है. सो प्लांट्स गेट अफेक्टेड विद लॉट ऑफ डिसीजेस, एंड प्लांट डिसीजेस का ऐसा है कि वॉट एवर फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, दे कॉज इन्फेक्शन ऑन द प्लांट्स,
They are very, very host specific. When you say host specific, it means the particular fungus will attack only that host. That's why I'm telling you examples like this. Late blight of potato. कि late blight का जो fungi है, Phytophthora infestans करके नाम है fungus का. That fungus can affect only potato crops. Smut disease can affect only wheat crop. So they are very specific. Tobacco mosaic virus. That virus can affect only tobacco crops. तो फार्मर जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसके हिसाब से इनको सोचना पड़ता है कौन सा डिसीज इसमें हो सकते हैं एंड हाउ कैन द प्लांट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिसीज एंड व्हाई द प्लांट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिसीज बिकॉज द ओनली रीजन इज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट क्रॉप विल रिड्यूस. जैसे यहाँ पे पिक्चर में टोमेटोज दिखाया मैंने, टोमेटो क्रॉप्स. सो इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन टोमेटो प्लांटेशन, तो हम लोग जब मार्केट में टोमेटो खरीदने जाते हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बॉट समटाइम्स टोमेटो कभी ना कभी तो खरीदे होंगे मार्केट से. तो वेंडर के पास बहुत सारे टमाटर रखे रहते हैं. यू सिलेक्ट ईच एंड एवरी पीस ऑफ द टोमेटो. डू यू टेल द वेंडर कि इसमें से 1 किलो निकाल के दे दो करके? डू यू डू दैट? Do you select the tomatoes or do you tell the vendor to take out any tomato and give you? कैसे खरीदते टमाटर मार्केट से? या any other Select the vegetable? tomatoes. You select each and every piece, correct? तो उसमें क्या फैक्टर्स देखते हैं? सबसे पहले तो कलर. Then you take the piece in your hand and you check for its firmness. बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऐसा लगा तो you don't select. फिर उसमें कट वट कुछ रहेगा तो नहीं सिलेक्ट करते, राइट? उसमें कुछ अलग सा बीच में स्पॉट्स या ब्लॉचेस दिखेंगे तो वी डोंट प्रीफर दैट. तो फार्मर का सोचो कि फील्ड में ही अगर ऐसे टोमेटोज तैयार हो गए जो उसको पता है कि नहीं बिकेगा मार्केट में, तो व्हाट कैन दैट पर्सन डू? दैट इज नथिंग बट इन्फेक्शन. तो उसको कंट्रोल करना है. तो देयर आर बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प बाय डेवलपिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप. रेजिस्टेंट वैरायटी का मतलब है कि द प्लांट कैन बी attacked by the respective pathogen, but उसको वो बीमारी होगा नहीं. Tomato mosaic virus, we cannot avoid the virus. Virus can enter, but virus enter हुआ तो भी plant effect नहीं होगा. अभी जो COVID-19 का वैक्सीनेशन हम लोग को मिलेगा, that is nothing but developing resistance. कि हम लोग हवा में वायरस को नहीं रोक पा रहे हैं, बट हम अपने आप को इतना रेजिस्टेंट बना रहे हैं कि even if the virus enters us, it will not cause any infection to us. That is the meaning of developing resistant varieties. Okay, so that is another thing. And then ये देखो हम लोग प्लांट के फिजियोलॉजी को ही चेंज करते हैं कि we want better fruits, we want good yield. Okay, yield per annum का मतलब है कि साल भर में कितना उसका आउटपुट है. How many fruits, how many flowers, whatever is the crop. तो कितना सारा हमें मिल रहा है वो हमें बढ़ाना है. सो द सेम प्लांट, अभी जैसे टोमेटो एग्जांपल लेते हैं, तो इन द नॉर्मल सेटिंग इफ द प्लांट इज गिविंग मी से 25 tomatoes, द सेम प्लांट कैन बी चेंज्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी टू गिव मी 50 tomatoes. तो एरिया ज्यादा नहीं लग रहा है, उतना ही लग रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, to increasing the yield. Okay, so depending upon the crop we can manipulate that. Okay, and then stress resistant varieties. When it comes to agricultural crops, okay, plants are very sensitive to soil condition, pH, temperature, mineral nutrients, okay, climatic condition. All these things are very, very crucial for the growth of crops. For example, if you say brinjal, you know brinjal, bangan. Okay, we eat that, we take it from the market and we prepare a lot of dishes out of it. brinjal का है ना, बैंगन का भरता वगैरह बनाते हैं. तो मार्केट में जब हम ब्रिंजॉल खरीदते हैं तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ ब्रिंजॉल. व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ ब्रिंजॉल? It's purple. इट इज कभी कभी ग्रीन भी रहता है. Yes, मैंने वो ग्रीन अलग और variety- व्हाइट भी देखा है. ग्रीन और व्हाइट भी है, आई एग्री, बट वो अलग वैरायटीज है. बट द नॉर्मल वाइड वैरायटी इज द पर्पल वन, करेक्ट. लंबा भी होता है, छोटा भी होता है,
बट वो डार्क पर्पल कलर। तो इफ यू आर ट्राइंग टू बाय द पर्पल वन, तो हम लोग जितना डार्क ब्राइट पर्पल होगा उतना हम प्रीफर करेंगे। अब फार्मर के लिए वो उतना अच्छा पर्पल कलर आने के लिए सॉइल में पोटेशियम अच्छा खासा होना चाहिए। दैट इज समथिंग द फार्मर हैज टू टेक केयर। Similarly, when it is about tomatoes or even capsicum, the colors are more attractive for us. तो ये सब कलर्स और ये सब जो चीजें आने चाहिए क्रॉप्स में, इवन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्राइट कलर ऑफ द रोजेस, द जरबेरास, द ग्लैडियोलस, द गोल्डन रॉड्स, ऑर्किड्स, इन सब में कलर्स अगर हमें चाहिए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द pH, टेम्परेचर एंड द सॉइल कंडीशन. So there are some plants which are having a very narrow requirement of all this. कि for example pH 6.5 to 7.5 उतना ही चाहिए प्लांट को. 6.5 से कम हुआ तो प्लांट प्रॉब्लम में आ जाएगा, 7.5 से बढ़ गया तो प्रॉब्लम में आ गया. So for such plants we can increase their tolerant range कि 5 to 8 में ठीक रहेगा. That can be possible by biotechnology. तो उसमें क्या फायदा होगा कि फार्मर को बहुत नैरो रेंज पे काम नहीं करना पड़ेगा, द प्लांट कैन सर्वाइव बेटर. गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू नो दैट प्लांट कॉल्ड सदाफुली, पेरीविंकल करके बोलते हैं. घर पे बहुत सारे कॉमनली लगाते हैं पॉट्स में, हाँ, राइट? पेरिविंकल. यस. तो इफ यू नो दैट प्लांट एंड घर पे अगर कभी रहेगा तो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए ज्यादा मच नहीं लगते. इट ओनली नीड्स वाटर. बस डेली बेसिस पे थोड़ा पानी डाल दो, बाकी उस प्लांट को कुछ नहीं चाहिए. इट ग्रोज वेरी नाइसली. ओके. बट देयर आर सम प्लांट्स, अभी घर में अगर मैं सपोज रोज प्लांट लगा रहा हूँ तो देन उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा नैरो हो जाता है. मतलब इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट अ मिनट. So when it comes to human beings, we know very well that some people, they like to get more attention. कि मुझे ऐसा चाहिए, नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना. बट देयर आर सम पीपल हु आर लाइक, जो मिलेगा मैं उससे खुश रहूंगा. ओके. सो प्लांट्स का भी ऐसे ही है, सबका रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं है. नाउ फॉर अ प्लांट लाइक शुगर केन एंड पैडी, ओके, इट रिक्वायर्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर. पूरा फ्लडिंग चाहिए. फ्लडिंग रहेगा तभी वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा. ओके. नाउडेज मार्केट में फ्रूट्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं. Have you all consumed dragon fruit? खाया ड्रैगन फ्रूट? Do you know what सर is खाया dragon है. fruit? है ना? हाँ, कैसा रहता है? अंदर से वो पूरा वाइट और उसमें ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, छोटे छोटे. एंड उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि उसको बस हाफ कट करो, आइसक्रीम कोन की तरह लेके खा लो. Right? It comes out very nicely and very easily. It's a costly one, but it is very, very good for the health. The pulp is very tasty. Correct? Has anyone else eaten that? सर वो Dragon बहुत fruit? हेल्दी रहता है ना. बहुत हेल्दी है. वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा रहता है. खाया कभी किसी ने ड्रैगन फ्रूट? हाँ एनीवन एल्स? सर, मैंने खाया है. हाँ. ओके. अभी बीच में अबाउट फोर्टनाइट एगो समथिंग पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि नाउअडेज, अभी लास्ट 1 मंथ 2 मंथ से मेनी फार्मर्स इन इंडिया हैव स्टार्टेड, लाइक उनका एग्रीकल्चरल एरिया वगैरह था जो पहले दूसरा कुछ क्रॉप्स ग्रो करते थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू ग्रोइंग ड्रैगन फ्रूट्स. कि पहले कुछ ऐसा क्रॉप ग्रो करते थे जिसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होता था, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल दैट प्रॉपरली, मॉनेटरी लॉस हो जा रहा था. सो व्हेन दे हैव शिफ्टेड टू ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन, दे आर अर्निंग वेरी गुड प्रॉफिट. कैन यू टेल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा प्लांट में ग्रो होता है जो कम से कम पानी में ग्रो हो सकता है. आई थिंक यू आर नॉट एबल टू इमेजिन बिकॉज ड्रैगन फ्रूट कैसा है नहीं पता है ना शायद तुम लोगों को. आई ट्राई टू शो दैट. वेट. It's a desert plant.
ड्रैगन बट फ्रूट वो तो सर अच्छा खासा पल्पी रहता है, लाइक पल्पी रहता है, बट वही मैं कह रहा हूँ, इट इज लिक्विड। पल्पी। हाँ हाँ, तो उसके अंदर का वो, सी अभी इफ यू इमेजिन अ प्लांट लाइक कैक्टस, कहाँ पे ग्रोथ? हाँ वो भी है, हाँ, वेयर डज उसमें अ भी कैक्टस पल्प। ग्रो? वेयर डज अ कैक्टस ग्रो? डेजर्ट्स में ना। तो अगर कैक्टस को मैं कट करता हूँ तो उसके अंदर से बहुत जूसी निकलेगा, राइट? हाँ बिकॉज डेजर्ट्स में प्लांट्स के लिए वो अडेप्टेशन हो गया ना, गेटिंग इट, कि जितना कम से कम पानी मिल रहे हैं तो उसके अंदर वो एडेप्टेशन आ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको कंजर्व करे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी पल्पी, गेटिंग इट? ओके, आई विल शो यू व्हाट इज ड्रैगन फ्रूट। दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? यस सर। Yes. दिस इज ड्रैगन फ्रूट। ये फ्रूट ऐसा आता है मार्केट में, इसको कट करो तो इट इज लाइक दिस, वेरी इजी टू ईट ऑल्सो। But sir, ओके, बट इट इज वेरी गुड, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, कभी भी कोशिश करो, ट्राई करो, कंज्यूम इट, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। बट उसका प्लांट देखो, ड्रैगन फ्रूट का काटे काटे एकदम, दिस इज अ डेजर्ट प्लांट, एंड सी द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन प्लांट। इमेजिन फार्मर्स के लिए कितना प्रॉफिट है। सी दिस, दैट इज द रीजन मेनी फार्मर्स हैव शिफ्टेड टू ग्रोइंग दिस नाउ, बिकॉज इसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट ग्रोज वेरी इजीली, एंड एज यू कैन सी एक एक प्लांट पे कितने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। मार्केट में अगर आज की तारीख पे खरीदने जाओ ना, तो ईच ड्रैगन फ्रूट अपने डोबिले के मार्केट में यू विल गेट इट फॉर अबाउट 80 to 100 रुपीज ईच फ्रूट। यस प्रणव, ये पहले इंडिया का फ्रूट नहीं है, इट इज अ एक्सोटिक फ्रूट, बट अभी इंडिया में कल्टीवेट करने को स्टार्ट किया। मेनी प्लांट्स आर देयर विच आर नॉट नेटिव टू इंडिया, बट ऐसे प्लांट्स को अगर हम ग्रो करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्सोटिक प्लांट्स अगर यहाँ पे ऐसे ग्रो करें जो यहाँ के प्लांट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करे, देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम, देन इट इज अ न्यूसेंस, otherwise it is no problem at all, getting it? So many farmers, they have shifted to growing dragon fruits mainly for this reason, because वो कम से कम इन्वेस्टमेंट में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बट इज दैट द सोल्यूशन? अभी जो आज चावल खेती ग्रो कर रहा था, कल से ड्रैगन फ्रूट पे लग गया, तो मार्केट में उतना चावल कम हो गया। जो गेहूं वाले थे अब ड्रैगन फ्रूट में आ गए, या दूसरा जैसे कोई फ्रूट में आ गए। इवन ग्रोइंग पाइनएप्पल्स इज इजी इफ यू सी, बिकॉज अगेन दैट्स अ डेजर्ट फ्रूट, उसको ग्रो करना आसान है, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, तो फार्मर्स आर प्रिफरिंग दैट। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड, टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, बट इट इज नॉट अ गुड ट्रेंड। सो दैट इज व्हाई बायोटेक्नोलॉजी मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस, एंड जो ओरिजिनल जो नेटिव प्लांट्स है, जो नेटिव क्रॉप्स है अपने कंट्री का, दैट हैज टू बी डेवलप फर्दर। That is the reason after people understood this, the government understood the trend, what is happening, then there was a development of biotechnology in our country, कि अपने कंट्री में बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन ढूंढ के निकालना जरूरी था। सो हाउ डिड इट डेवलप? सी, देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड बायोकॉन, आज भी है, ये 1978 में एस्टेब्लिश हुए। बायोकॉन इज इन बैंगलोर। ओके, तो ये सबसे पहला कंपनी था जो बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। ओके, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेनी एजेंसीज, जैसे ये है डीएसटी। डीएसटी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देन यू हैव सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड देन यू हैव यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे एजेंसीज आ गए विच स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस साइंस एंड उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी को। ओके, ऑल दिस यू कैन विजिट द वेबसाइट्स एंड सी व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, गेटिंग इट? ओके,
यस प्रणव गार्गी व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट कि कोरिया में कुछ ऑरेंज कलर के फ्रूट्स है जो इंडिया में नहीं है. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं where you find in the foreign countries but not in India, and there are many other fruits which you find in India but not in other countries. So as far as agriculture is concerned, India में fruits, vegetables, grains, even floriculture के flowers, ये सब का इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छे से मिलता है when you export from here. तो अभी भी सिचुएशन ऐसा है इंडिया में कि there are many crops which are exported out of India but not imported much. So we are at a profitable side, but we are going towards a loss because of all these reasons. That is the reason इसको बचाना जरूरी है, where biotechnology can come into picture. Okay, so all these agencies you should know, and National Biotechnology Development Board was established in 1982. ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स है, ये अभी भी सब DST इसका ही है. ओके सो इसमें ऐसा है कि अभी जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो दे गिव अभी डेवलपिंग जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उनको फेलोशिप देते हैं. लाइक माय ओन एग्जांपल, मेरा फेलोशिप था पीएचडी के टाइम पे. सो माय 4 years ऑफ रिसर्च आई डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग. मुझे सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से मिला फ्रॉम दिस यूजीसी. ओके, बिकॉज मेरा रिसर्च किससे रिलेटेड था? फॉरेस्ट से रिलेटेड था. ऑल ऑफ यू, तुम लोग सबने वीडियो देखा होगा व्हिच आई हैड सेंट. 1 or 2 ऑफ यू गिव मी द रिस्पांस, बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं. तो यूजीसी की तरफ से फेलोशिप मिलते हैं कि दे प्रोवाइड द मनी सो दैट माय रिसर्च इज सपोर्टेड. So like that, many people who engage into research which gives a contribution to the development of biotechnology, this kind of agencies can be approached. अभी भी अगर सपोज इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहीं पर भी इससे रिलेटेड कुछ वर्कशॉप रहा, सेमिनार रहा, वेयर आई कैन पार्टिसिपेट और वेयर आई कैन प्रेजेंट अ रिसर्च पेपर, एंड वर्ल्ड में दूसरी जगह पर रहेगा वेयर मुझे आने जाने के लिए, वहाँ एकोमोडेशन के लिए खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आई कैन अप्रोच दीज एजेंसीज. Okay, DST can provide you the funding, ICAR can provide you the funding, and there are many people who actually use that money for such good purpose, because उससे बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट होता है. इन सबका अपना अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं. यूजीसी नेट, CSIR नेट, DST का एग्जाम होता है, ICAR ICMR के नेट एग्जाम्स होते हैं. लाइक आई हैव क्लियर्ड माय CSIR UGC नेट एग्जाम. ऑल ओवर इंडिया आई गॉट 63rd रैंक, बट आफ्टर 6 अटेम्प्ट्स. बहुत ही टफ एग्जाम होता है वो. 6 बार एग्जाम दिया तब जाके क्वालिफाई किया. उसके वजह से मुझे फेलोशिप मिला, एंड माय फेलोशिप वाज एबल टू सपोर्ट माय रिसर्च. तो इट्स लाइक फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी को ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट है तो हाउ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू. गेटिंग इट? ओके, तो ये एग्जांपल्स हम लोग ध्यान में रख सकते हैं फ्रॉम योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इस फील्ड में जाना है तो हाउ यू कैन गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. बिकॉज मैंने देखा है स्टूडेंट्स के केस में कि दे आर मेनली वरीड अबाउट दिस फैक्ट कि कौन सा ऐसा पढ़ाई करके जल्दी से जॉब मिलेगा और पैसे कमाने मिलेगा. दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड, एंड ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं सोचते कि उनके सोशल फ्रेटर्निटी से सोच आता है दिमाग में. ओके, बिकॉज आफ्टर दिस 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पीपल विल स्टार्ट बॉम्बार्डिंग यू, है ना, कि कौन सा पढ़ाई करेगा तो जल्दी से जल्दी जॉब लगेगा, जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करेंगे. तो यू हैव टू गिव दीज एग्जांपल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. गेटिंग इट? कि फंडिंग मिलता है. द ओनली थिंग इज दैट विच एवर फील्ड यू गो यू शुड बी एक्सेलिंग इन दैट. कि सपोज प्लांट से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन अप्रोच ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो कैंसर बायोलॉजी वगैरह पे रिसर्च कर सकते हैं, तो देयर यू गेट द फंडिंग फ्रॉम ICMR. ठीक है, CSIR बहुत अच्छा एजेंसी, काफी सपोर्ट करते हैं. ठीक है, like that, these are the practical examples I am telling you where biotechnology can help you, and इंडिया में उसका क्या सिनेरियो है. ओके, तो 1986 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, उसके अंदर एक और डिपार्टमेंट तैयार किए कॉल्ड DBT,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Okay, government of India में there are many various ministries. We have Ministry of Home Affairs, we have Ministry of Finance, है ना, Ministry of Travel and Tourism, ऐसे अलग अलग रहते हैं. So there is one ministry called Ministry of Science and Technology. Under this ministry, the DBT was established, and India is the first country in the world to create such a separate department under the central government. ये establish हुआ है 1986 में. So along with these agencies, even DBT can help you if you are interested in biotechnology in India. So there is such lot of support. Now you are having the clear picture about this. Getting it? So ऐसे बोलते हैं ना, जो पुराने डिकेड्स 3-4 डिकेड्स पहले जो ट्रेंड था कि इंसान ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पढ़ लिया, आज 12वीं का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, फर्स्ट क्लास आ गया, तो कल कंपनी वाले आ गए जॉब देने के लिए. दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी फील्ड टुडे. People are sitting with very big qualifications and not having jobs. So that's the reason you have to carve your own path, irrespective of biology or any other subject for that matter. You have to make your own path. And वो तभी possible है जब तुम लोग ऐसे फील्ड सिलेक्ट करो जहां पे तुम लोग को लगता है कि तुम लोग अपना 100% दे सकते हैं. So don't go by what people are telling. Select your career only based on your own skills and your own passion, not by the marks also. That doesn't help, because I have seen people going into incorrect fields and they are just getting lost. वो एक बहुत बड़ा frustration आता है. Career का decision अपना खुद का रखो. You take the guidance about every field from all people. जो उस फील्ड में है उन्हीं से पूछ लो, but final decision तुम लोग का होना चाहिए. That is very very important. Okay, don't let anyone influence you when it comes to career. कि मेरे मामा ने बोला कि इसमें स्कोप है, मेरे चाचा ने बोला कि उसमें स्कोप है. Don't listen to all that. Getting it? Okay, that is very very important. So अब ये DBT वाला पार्ट सब समझा एवरीवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन आवर कंट्री. Everybody understood this? हाँ. Okay, so again based on this, now see different institutes कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने वाले. स्टार्टिंग में हमने देखा था दैट वाज बेस्ड ऑन सेल बायोलॉजी, जैसे NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे. Yeah, I told you about NCBS, National Center for Biological Sciences at Bangalore, right? CCMB at Hyderabad मैंने बताया था. Same way here, when it comes to biotechnological research, you have institutes like this. NII, National Institute of Immunology, located at Delhi. ये कैंपस देख के पता चल रहे हैं कि इतना अच्छा अच्छा कैंपस बना है, तो देयर आर पीपल वर्किंग. तो अभी कोई बोल नहीं सकते ना कि यहाँ पे स्कोप नहीं है करके. Whenever people will ask you this kind of questions, ये पूरा सुनाओ. Getting it? You should be confident about what you're trying to enter, right? National Institute of Immunology at Delhi. Similarly, ये देखो, ये ऐसे labs होते हैं, sophisticated laboratories. इसमें एक एक instruments बहुत costly होते हैं. But कौन खरीदता है? Government. No student will pay for this. No faculty will pay for this. It is only the government who will support. But ऐसे लैब में काम करने के लिए सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ा बात है. For that you should have the skills. तो जैसे ये है नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर. This is at Pune. This is one of the laboratories in Pune in an institute called IISER, IISER, Indian Institute of Science and Education, Science Education and Research. So IISER Pune is one of the very premier institutes, getting very good funding from the government. तो वहां पर इस तरह का laboratory setup है कि if you are interested in animal tissue culture, cell culture, तो इस तरह के laboratories हैं. But यहाँ पे काम करने के लिए first of all you should at least be a postgraduate and you should have a good research skills. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कुछ वैकेंसी होगा एंड यू विल अप्लाई फॉर अ प्रोजेक्ट और समथिंग, सो सबसे पहले इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में तुम लोग के स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा. देयर विल बी अ पैनल ऑफ साइंटिस्ट. यू विल हैव टू फेस द इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू विल हैव टू कन्विंस देम. देन यू विल बी सिलेक्टेड इन द लैब. फिर उसमें ट्रेनिंग होगा.
बट ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. That is what the pattern is, and there are many people who do their PhD and all with respect to these fields. Okay, my sister Vaishnavi is doing at such an institute at Tirupati. IISER in तिरुपति में ही है, इस तरह के लैब है जहाँ पे वो काम करती है. ओके, देन ये देखो NBRC at गुरुग्राम. गुरुग्राम मतलब किधर है? Which state of India? Gurugram is actually the new name. The earlier name was Gurgaon. किधर आता है गुड़गांव? It's near Delhi, right? Yes, it is one of the NCR of Delhi, हरियाणा. दिल्ली के पास में ही है बट हरियाणा में. ओके, दैट इज गुरुग्राम. NBRC स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर. ये पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है सिर्फ ब्रेन पे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. So these are all latest examples we are showing you, right? 2 years back I had visited this institute. बहुत अच्छा फैसिलिटी है, मस्त फैसिलिटी एकदम. And nowadays these things are upcoming because there are funding available, there are people working for it. Okay, so ऐसा नहीं है कि इस तरह के sophisticated laboratory सब abroad जाके ही मिलेगा या something. We have to develop this in our country itself. And these are all the latest points which are explaining you all this. Okay, तो अपना अपना skills पे focus करो. Just start thinking if you are interested in this kind of field कि क्या करना है, कैसे जाना है. Correct? So you can always keep this as an option and you should be clear about your path. Okay, and then बहुत interesting है CMAP लखनऊ. CMAP का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. ये है लखनऊ में. लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बॉटनिकल इंस्टीट्यूट्स. यू हैव बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी एट लखनऊ. यू हैव NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन एट लखनऊ. यू हैव CMAP एट लखनऊ. 3 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो लखनऊ में हैं. You know very well it is present, it is in Uttar Pradesh. तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो CSIR फंडेड है. ओके, CSIR we saw it over here now. So this institute नाम से ही पता चल रहा है, this is focused only on medicinal and aromatic plants. तो उसके तरह के प्लांट्स पे रिसर्च करने के लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है. So visit the website of these and you will see how many people are working and what kind of research they are doing. ओके, तुम लोग को वो प्लांट पता है सिट्रोनेला, कॉमनली कॉल्ड लेमन ग्रास. डू यू नो लेमन ग्रास? है ना, कहाँ यूज करते हैं लेमन ग्रास? टी या फिर काढ़ा एंड यस. चीजों में. व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लांट? इट स्मेल्स वेरी नाइस. उसके वो ऑयल्स रहते हैं ना, वो भी मिलते हैं. एग्जैक्टली. बहुत यहाँ पे अच्छे नाम में वही है, एरोमेटिक प्लांट्स. That means plants which have good quantity of volatile oils. तो सिट्रोनेला के अच्छे अच्छे varieties जो हैं वो CMAP लखनऊ ने डेवलप किए, which produces good quantity of oils, large amount of oils. Okay, are you aware about a plant called stevia? Stevia रेकोर्डियाना करके प्लांट है. You know what is stevia? हाँ. क्या खास बात है स्टीविया का? It is used as a sweetener. A natural sweetener. स्टीविया एक ऐसा प्लांट है, उसके लीव्स में नेचुरली नॉर्मल शुगर से 300 गुना ज्यादा शुगर कंटेंट है, बट दैट शुगर इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पीपल. तो स्टीविया लीफ के एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, स्टीविया लीफ का पाउडर मिलते हैं. तो स्टीविया के बहुत सारे वैरायटीज हैं जो CMAP लखनऊ ने डेवलप किया, बिकॉज इट्स अ मेडिसिनल प्लांट. So there is an innumerable number or a list of medicinal plants and aromatic plants found in the wild in our country. उनको डेवलप करने के लिए उनका डिसीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, उनका ईल्ड, उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन सब बढ़ाने के लिए जितना रिसर्च हुआ है वो सब यहाँ पे हुआ है. अ वेरी वेरी यूनिक इंस्टीट्यूट इन अवर कंट्री. तो अभी कोई कैसे बोल सकता है कि प्लांट साइंस, एनिमल साइंस या साइंस या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में स्कोप नहीं है करके? डू यू एग्री विद दैट नाउ? इफ एनीबॉडी विल कम एंड टेल यू दैट, विल यू हैव आंसर्स टू इट? How many of you are interested in pursuing a career in biology?
एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी? एज ऑफ नाउ इतना तो सोचा होगा ना कम से कम, बायोलॉजी में कुछ करना है करके. एनीवन? यस. Anybody interested in pursuing any course in this kind of institutes? ये सब देख के मन कर रहे हैं? Anyone? स्नेहा ने रिप्लाई दिया yes. Others, you can speak up. या अभी बट भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में नहीं, इंस्टीट्यूट्स में इतने नहीं? हाई लेवल में नहीं होगा. अरे ऐसा नहीं सोचने का स्नेहा. मतलब Do not दूसरे underestimate yourself. इतना हाई लेवल सब कुछ नहीं है. इतना सोफिस्टिकेटेड मत सोचो. You are also equally eligible for that. I mean after a few years. Getting it? And I don't blame you for this. ये अपने यहाँ का मेंटालिटी ऐसा है, हमारे दिमाग में ये बात डाल दिया जाता है कि ये सब बहुत बड़े बड़े चीजें हमारे बस की बात नहीं है करके. Never ever think about that. Getting it? I tell you my example. जो मेरी PhD की गाइड है, okay, that she is डॉक्टर संगीता गुप्ता मैडम, जो बहुत बड़े लेवल की साइंटिस्ट है इंडिया में, प्लांट एनाटमिस्ट है वो. शी इज सच अ ह्यूज साइंटिस्ट कि एवरी डे जब वो अपना ईमेल खोलती है ना, तो शी इज गेटिंग इन्विटेशंस फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू प्रेजेंट समथिंग और द अदर इन एनी कॉन्फ्रेंस. उनको बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ता, इतना उनका डिमांड है. बट दैट लेडी इज सो हम्बल. शी हैज गिवन मी अ कंप्लीट क्लियर आउटलुक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज रिसर्च. और हमेशा मुझे उनका एक पॉइंट याद आता है कि रिसर्च इज नो रॉकेट साइंस. ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लैब में सब एकदम व्हाइट कोट पहन के बड़ा बड़ा कुछ कर रहे तो वही रिसर्च हो गया करके. नो, रिमूव दैट मिसकंसेप्शन. रिसर्च कैन बी कोरिलेटेड विद जस्ट वन वर्ड, ऑब्जर्वेशन. You observe things around you, try to think why, and come at a solution. That is research. Getting it? Okay, तो रिसर्च का मतलब वही है कि ऑब्जर्व करो, काम करो, बस. You all can very well join this kind of institutes and actually work. You will contribute a lot to our country, and there are people required to work in these institutes. तो वो एक स्टीरियोटिपिक जो ट्रेंड होता है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है, स्पेशली ऑफ योर एज ग्रुप, कि बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि एकदम बड़ा बड़ा कर लो, बहुत कुछ कर लो, एंड देन आफ्टर 12th गेट एक्सपोर्टेड, अब्रॉड जाओ. Don't be into that trend. I'm not against going abroad or something, but always remember one thing: पढ़ाई के लिए कहीं पर भी जाओ, but give a contribution to our country. अपने कंट्री को कंट्रीब्यूशन देने के बारे में सोचो. If the government is doing so much, it is our duty also to do so much. That is also equally important. एकदम ऐसे दिमाग में बिठा के नहीं चलना कि बस हाँ 12वीं खत्म करके निकल जाना है, बाहर जाके कुछ पढ़ना है, वहीं पे रह जाना है, सेटल करना है, ग्रीन कार्ड लेना है. Stereotypic trend. Don't go into that rat race. Getting it? किसी फील्ड में मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचना, किसी फील्ड में मैं क्या दे सकता हूँ वो सोचो. You will really excel. That mindset needs to be cultivated at this age group itself. ठीक है? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो थे यहाँ पर मैंने दिखाया है. We'll move ahead now. आज आई थिंक देयर इज सम चेंज इन द जूम कि 40 मिनट्स में कट नहीं रहा है कॉल का. So it's good we are continuing, right? You want a break or something in between? No. ब्रेक चाहिए तो बोलो, या विल कंटिन्यू. Shall we continue? We will continue. Okay. तो कमिंग टू अभी एप्लीकेशंस कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर हेल्प होता है एंड हाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ दैट विद सम एग्जांपल्स. ओके, तो जैसे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द वेरी मेजर फील्ड्स एज वी हैव डिस्कस्ड नाउ, कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो गया है बायोटेक्नोलॉजी. तो उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज हाइब्रिड सीड्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड किसको बोलते हैं? 9th स्टैंडर्ड में जेनेटिक्स पढ़ा था, याद है? तो अलग अलग जिनमें कुछ स्पीशीज को genetic मिक्स कर दिया था. modification. यस, हाइब्रिड का सिंपली मीनिंग है कि प्लांट ए, प्लांट बी, and you mix the characters of both
by genetic level and you get a hybrid which has combination of two different contrasting parents. तो अभी hybrid seeds हम लोग develop कर सकते हैं. All of you know what is a seed. It is a product of sexual reproduction in plants. After fertilization, when the zygote is formed, it develops into an embryo surrounded by the endosperm and the seed coat. वो उसका seed होता है, which is the material which the plant produces so that it can propagate to some different places and it can germinate easily. But हम लोग क्या करते हैं, ऐसे seeds बनाते हैं जो plant naturally नहीं बना रहे. We are taking the natural material, we are incorporating the combination of two desirable features and we are creating our own hybrid. ऐसे seeds को बोलते हैं hybrid seeds. And हम ऐसे plants के seeds बनाते हैं which are economically useful in crop field or in agriculture. So genes of two different crops, they are recombined to form hybrids of various crops. तो fruits के लिए बहुत useful है कि जैसे grapes, mango, chiku, apples, okay, so many such fruits are there where we have created lot of hybrid varieties. बहुत सारे hybrid varieties हमने बना दिए उस वजह से. तो Alfonso is a natural variety, हाफूस mango. Okay, similarly you have केसर variety mango का, वो भी एक natural variety है. But दोनों को hybrid बनाकर हमने एक तीसरा variety तैयार किया. That's a hybrid one. So again you get a mango, but the hybrid variety is giving you more desirable features. उसका pulp ज़्यादा sweet होगा, the size of the fruit will be bigger, market value will be more number of mangoes on the tree. Okay, so ये सब चीजों की वजह से we are preferring the hybrid ones. Sultana grapes, Thompson seedless variety करके बोलते हैं. Okay, so that is crossed with another natural variety. So you get a different variety of grapes जहाँ पे each berry of a grape is big in size. तो जब हम अंगूर खाते हैं तो हमें बड़े बड़े अंगूर मिलते हैं बिना सीड्स वाले, तो मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस. उसका शुगर कंटेंट मैटर करेगा. ओके, उसमें से कितना अच्छा क्वालिटी का वाइन बना सकते हैं वो मैटर करेगा. सो ऑल द डिजायरेबल फीचर्स वी टेक इनटू अकाउंट. ओके, सिमिलरली मेज देखो, कॉर्न, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक राइट. ये कॉर्न का है, नेचुरल वैरायटी है, बट हाइब्रिड में देखो उसके सीड्स के कलर. नॉर्मली ये येलो होता है ना भुट्टा, बट ये हाइब्रिड वैरायटी देखो क्या कलर है. ब्रिंजॉल देखो, वाइट ब्रिंजॉल प्रोड्यूस बाय हाइब्रिड सीड्स. ओके, दिस इज अपना GMO करके लिखा हुआ है, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो वी आर मैनिपुलेटिंग द जीन्स एंड वी आर क्रिएटिंग न्यू हाइब्रिड्स. ऐसे करके बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स है, सब F1 हाइब्रिड. ओके, so hybrid varieties are more entering the market nowadays, but obviously see अभी biotechnology करके, because we are able to use this knowledge, we are able to create many new varieties, but one has to have some end point somewhere कि वो varieties बनाने का जरूरी है कि नहीं, because there should not be things that will go against nature. Getting it? अभी white brinjal बना दिए, it's only about the color. So इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग इसके बिना सरवाइव नहीं कर रहा है. तो नेचुरल वैरायटी शुड ऑलवेज बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर द हाइब्रिड वंस. बट जहां पे एकदम अच्छा प्रॉपर्टी है जो दूसरे से नहीं मिल रहा हो, तो हाइब्रिड वैरायटी कैन बी प्रेफर्ड. यू आर अवेयर अबाउट कलर्ड कैप्सिकम, येलो एंड रेड वाले, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अगेन बिकॉज ऑफ हाइब्रिड. Right, and Sneha, what you're telling is correct. Rainbow color के कॉर्न भी होते हैं, yes, colorful varieties. But उसका actually जहाँ तक मैं जानता हूँ, it is not because of hybridization. उसमें एक natural phenomenon है. नेचुरल है ना? Natural है, उसमें transposition करके एक phenomenon है. मेज में सबसे पहले मेज में डिस्कवर हुआ था वो. That is called transposition. There are special type of genes present in the maize plant जिसको jumping genes बोलते हैं. Okay, तो उसके क्रोमोसोम्स में जो जीन्स है ना, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द जीन्स कैन शिफ्ट देयर पोजीशन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर इन देयर ओन जीनोम. उसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं. उसके वजह से नेचुरली म्यूटेशन होते हैं.
दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, जिसके वजह से मेज के क्रॉप्स के कलर बदलते हैं। देयर वाज अ लेडी साइंटिस्ट कॉल्ड बारबरा मैकक्लिंटॉक, उन्होंने डिस्कवर किया था मेज प्लांट में। ओके, सो ऑल दैट थिंग इज देयर, बट यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एनी अदर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स व्हिच यू फाइंड इन द मार्केट? नेक्स्ट टाइम whenever you go out to the market, Bananas. exactly, I was coming to that. मार्केट में जाओ, देखो तो बनाना के देखो कितने वैरायटीज मिलते हैं, करेक्ट। इन कर्नाटका, अपने कूर्ग, देयर इज अ स्मॉल हिल स्टेशन कॉल्ड कूर्ग, आर यू अवेयर? कर्नाटका में, डू यू नो दैट प्लेस? हाँ। कूर्ग करके एक जगह है कर्नाटका में, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है सिंपली नोन एज द हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। In that institute, they have developed 73 different types of only banana. 73 different types of only banana crop. So that's a huge thing, correct? तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इतने सारे, मेरे पास एक और पीपीटी है जो मैं कॉलेज लेवल पे यूज करता हूँ। आई जस्ट शो यू दैट आफ्टर दिस, कि उसे फोटोज दिखाता हूँ मैं प्लांट्स के कि कितने सारे हाइब्रिड वैरायटीज हैं, ठीक है? आई शो दैट राइट नाउ, तो तुमको आइडिया मिलेगा। Even purple cabbage and broccoli are hybrids. हाइब्रिड, यस यस, दैट्स राइट। तो द लिस्ट इज एंड। तो तुम लोग ये सोच सकते हैं कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इस लेवल पे हम लोग ने वैरायटीज डेवलप करके रखे हैं। वी आर हैविंग सच ह्यूज जर्म प्लाज्म विद अस, करेक्ट? तो इतना सारा जर्म प्लाज्म को हाउ कैन वी अफोर्ड टू लूज दैट स्पीशीज, है कि नहीं? तो बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वी कैन एक्सपोर्ट ऑल दिस एंड अर्न गुड मनी। अभी जो गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया एंड ऑल, वहां पर इंडिया के हापुस मैंगो का इतना डिमांड है, दे पे यू लाइक एनीथिंग टू गेट द गुड क्वालिटी हापुस। इसलिए यहाँ जो हापुस ग्रो करते हैं ना, वो अच्छे से अच्छा जो क्रॉप आता है वो इंडियंस को नहीं देते, वो बाहर बेचते हैं, बिकॉज पैसा मिलते हैं। ओके, सो वी आर अर्निंग गुड मनी आउट ऑफ दैट। तो इसको डेवलप करना, इसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइक ये ग्रेप्स है। स्लाइड दिख रहा है सबको? ग्रेप्स वाला, हाँ। यस। तो यहाँ पे देखो ग्रेप्स, नाउ यू नो वेरी वेल, इंडिया में सबसे अच्छे ग्रेप्स कहाँ मिलते हैं? विच प्लेस इन इंडिया? नासिक। नासिक, है ना? तो उसमें कितने वैरायटीज है देखो ग्रेप्स के। अभी ग्रेप्स क्रॉप के ऊपर कैसे कैसे बीमारी आते हैं देखो, सी दिस, इंसेक्ट अटैक, बैक्टीरियल डिसीज, ओके। देन ये देखो, ग्रेप्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज है, ओके, ऑन द ग्रेप्स क्रॉप। तो फार्मर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके। देन सी द वैरायटीज, या सी दिस, ये सब वैरायटीज के नाम है। अनाबे शाही, बैंगलोर ब्लू, भोकरी, गुलाबी, पर्लेट, थॉमसन सीडलेस, ओके, दीज आर कमर्शियल वैरायटीज। ये देखो शरद सीडलेस, दिल खुश, फ्लेम सीडलेस, ओके। एंड ये हाइब्रिड वैरायटीज देखो, अनाबे शाही एंड थॉमसन सीडलेस, ये नेचुरल वैरायटीज है। इनका हाइब्रिड करके वी हैव क्रिएटेड दिस कॉल्ड अर्का श्वेता, ओके। सिमिलरली ये देखो अंगूर कालन और अनाबे शाही, इनका हाइब्रिड बना के वी हैव क्रिएटेड दिस कॉल्ड अर्क चित्र। ये एक देखो नेक्स्ट, अंगूर कालन और ब्लैक चंपा, इनका हाइब्रिड बनाया तो वी गॉट अर्का मैजेस्टिक। तो कितने वैरायटीज ग्रेप्स में ही हो गए, ओके। सिमिलरली वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्लांट इन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज कोकोनट, उसमें कितने वैरायटीज है देखो। सीरियस ड्वार्फ वैरायटीज है, चौघट करके, ओके। देन यू हैव दिस कॉल्ड लैक्केडिव एंड मालदीव ड्वार्फ, अंडमान ड्वार्फ, गंगाबोंदम ड्वार्फ, ओके। फिर है वेस्ट कोस्ट टॉल,
कपड़म करके एक नाम है, सब नारियल के वैरायटीज है, हम लोग इतना नोटिस नहीं करते मार्केट में। ओके, तो ये इसके वैरायटी और ये हाइब्रिड वैरायटी। सो केरला में कासरगोड और नीलेश्वर करके दो जगह है, there are coconut research stations over there, so if you like the coconut plant you can join these institutes and you can work on coconuts. Okay, and ये देखो हाइब्रिड, so many hybrid cultivars, सबका अपना अपना नाम भी दिया हुआ है। ओके, सिमिलरली चिलीज, चिली क्रॉप्स में कितने वैरायटीज है देखो, See this. ये सब नाम है, मार्केट में कभी देखा रहेगा ना मिर्ची सब्जी वाले के पास, छोटे बड़े हरे ना, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ देम? यस, Yes. तो ये सब ऐसे ऐसे वैरायटीज है देखो, दिस इज अपर्णा, ये भाग्य लक्ष्मी, ओके, जवाहर 218, ओके, देन यू हैव पंजाब लाल, पूसा सदाबहार, उज्ज्वला, सिंदूर, सब वैरायटीज है चिलीज के। गेटिंग इट? सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई एम शोइंग यू, ओके, जहां पर हाइब्रिड सीड्स में इतना सारा वैरायटीज हमने डेवलप किया हुआ है कि द लिस्ट बिकम्स एंडलेस। गेटिंग इट? एंड ये सब इंडिया में पॉसिबल है, वी आर ऑलमोस्ट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ देम इन आवर एवरीडे डाइट, so we must say thanks to this biotechnologists. Okay, then you have genetically modified crops, GMO crops बोलते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि फ्रॉम वन पर्टिकुलर क्रॉप यू आर टेकिंग अ डिजायर्ड फीचर, आई मीन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजायर्ड फीचर एंड इंट्रोड्यूसिंग दैट जीन इनटू सम अदर क्रॉप। तो दूसरा क्रॉप है उसमें पहले वाले का भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी मुझे मिल रहा है, तो मॉडिफाइड द जीन्स। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि देयर आर बैक्टीरिया विच आर इन्वॉल्व्ड विच आर यूज्ड, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया यूज्ड इज ई कोलाई। ओके, तो अभी जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका डीएनए हमने निकाला, वी आर एबल टू डू दैट इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दैट डीएनए में से एक छोटा पार्ट हमने निकाल कर उसके जगह पर इन दैट सेम डीएनए वी आर इंट्रोड्यूसिंग अनदर जीन ऑफ इंटरेस्ट। कि बैक्टीरिया है, ओके, उसका डीएनए है, उसमें एक जीन है, वी रिमूव दैट जीन एंड वी पुट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वी पुट दैट इन बैक इनटू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो एक था अब वो फटाफट मल्टीप्लाई करेगा, ई कोलाई, one bacteria will give you thousands and thousands of bacteria, so along with the bacteria my gene is also multiplied, so that gene producing whatever desirable feature I am getting in large quantities now, and वो जो ट्रांसफॉर्म्ड जीन है वो मैं प्लांट के सेल्स के अंदर डालूंगा, प्लांट के सेल्स के अंदर डालूंगा तो प्लांट सेल्स कैन बी कल्चर्ड। नाउ यू आर अवेयर अबाउट टोटीपोटेंसी, कि प्लांट के सेल्स को मैंने कल्चर किया तो आई एम गेटिंग द एंटायर प्लांट आउट ऑफ इट, बट नाउ दिस प्लांट विल हैव माय डिजायर्ड फीचर व्हाटएवर आई वांट। तो ऐसे करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार करते हैं। Getting it? So next time if you are having any colored capsicum or any different colored brinjal or different varieties of chilies or having coconut water, recollect this कि somebody has done this for you. Getting it? Okay? तो ये देखो अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ओके, वी विल कंप्लीट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ठीक है, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स है इसके लिए। So here one of the best examples is this bacteria जिसका नाम है Bacillus thuringiensis. I think it's not written there. I'll write the name. There is a bacteria जिसका नाम है Bacillus thuringiensis. Okay? ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल है बायोटेक्नोलॉजी में। Why it is so? The reason is this bacteria naturally can cause a disease or a disorder on the plants. इस बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन है
which is called as the tDNA. Okay, that tDNA gene can cause tumors on a plant. कि वो बैक्टीरिया अगर उस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उस प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, स्टेम और रूट के उधर ट्यूमर डेवलप होते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, इस बैक्टीरिया को लेकर उसका डीएनए को निकालकर उसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है tDNA वो निकाल दिया और वहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. ओके, एंड वी लेट द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई. बट नाउ द बैक्टीरिया इज नॉट कॉजिंग ट्यूमर. In fact, it is producing that property जिसका जीन हमने उसमें इंसर्ट किया हुआ है. Okay, whatever the bacteria is producing now is our desirable feature. तो ऐसे जो क्रॉप्स हमने तैयार किए हैं by introducing the gene from Bacillus thuringiensis, ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं BT क्रॉप्स. BT stands for Bacillus thuringiensis. ओके इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी. अभी ये बहुत अच्छा से दिया, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है दिस इज वन प्लांट. ठीक है, ऑब्जर्व दिस फिगर आई एम शोइंग यू. ये जो प्लांट है ये एक इंसेक्ट से बहुत अटैक होता था. इट वाज कॉल्ड एज द यूरोपियन कॉर्न बोरर. कॉर्न प्लांट है, मेज का प्लांट. वो इस इंसेक्ट से परेशान हो जाता था कि फार्मर्स बहुत परेशान होते थे कि ये इंसेक्ट, दिस बोरर यूज्ड टू अटैक द क्रॉप्स लाइक एनीथिंग. तो अभी हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद दिस बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, उसका बीटी जीन हमने इस क्रॉप में डाल दिया. ओके उसका वो जीन निकाल कर वी हैव पुट दैट इन दिस क्रॉप. तो ये जो बीटी जीन है ना, इससे क्या होगा कि नाउ दिस क्रॉप, इफ इट इज अटैक्ड बाय दिस इंसेक्ट, दैट इंसेक्ट विल सिंपली डाई. द रीजन इज दिस बैक्टीरिया produces a chemical which is known as thurioside. तो इंसेक्ट अगर कभी खाएगा इसको तो वो इस केमिकल से अटैक होके मर जाएगा. तो जब ये इंसेक्ट ने प्लांट को खाने को ट्राई किया, इस बैक्टीरिया के जीन के वजह से वो केमिकल प्रोड्यूस हो गया जो इंसेक्ट के अंदर गया एंड द इंसेक्ट डाइड. तो ऐसे क्रॉप को हम बोलेंगे बीटी क्रॉप. Have you understood the concept of BT crops, everyone? Yes, everyone. बट सर फिर वो प्लांट को अफेक्ट नहीं होगा नहीं क्या होगा, उससे? नहीं होगा. वो स्टडी करने के बाद ही ऐसा रिलीज करते हैं ना. दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट कि अगर ऐसा कोई जीन में प्लांट्स के अंदर डालता फिर हूँ उस पे एंड एट द पेड़ सेम पर टाइम, ट्यूमर्स आ गए तो? नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीटी जीन डाल दिए जिसके वजह से ये हार्मफुल कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं, वो सिर्फ पेस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना. अभी ये क्रॉप है मेज का, इसमें से मेज निकल कर अगर हम खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा. वो सब टेस्टिंग करने के बाद ही मार्केट में रिलीज करते हैं कि दिस इज सेफ फॉर कंजम्पशन एंड इट विल कीप द पेस्ट अवे. इसीलिए बीटी क्रॉप्स काफी फेमस हो गया. गेटिंग इट? वो सब रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते हैं, टेस्टिंग सब करने के बाद ही नया कल्टीवर बोल के रिलीज करते हैं. तो अभी फॉर एग्जांपल यू हैव कॉटन प्लांट्स. ओके, कॉटन प्लांट्स में बॉलवर्म्स करके आते हैं जो बहुत इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को एंड बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लांट्स को. तो फार्मर्स वर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस. तो अभी इसमें क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि कॉटन, नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, तो इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने क्या किया, कॉटन के प्लांट के अंदर ये बीटी जीन डाल दिया फ्रॉम दिस बैक्टीरिया. तो अभी कॉटन प्लांट्स ग्रो होते हैं, कॉटन डेवलप होते हैं, बॉलवर्म्स भी आते हैं. बट इफ द बॉलवर्म ट्राइज टू फीड ऑन दिस कॉटन, द बॉलवर्म्स डाई. कॉटन प्लांट्स बच गए. तो ऐसे जो वैरायटी कॉटन का डेवलप किया है उसको बोलते हैं बीटी कॉटन. समझा सबको? एंड यू नो वेरी वेल कॉटन हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट क्रॉप, इकोनॉमिक क्रॉप है. दो इट इज नॉट एन एडिबल क्रॉप बट उसका मार्केट वैल्यू है. तो वो इंसेक्ट खाए उससे बेटर कॉटन हार्वेस्ट करो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करो. So that way when the crop was produced, it is known as the BT cotton.
अंडरस्टूड दिस एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको बीटी हाँ। क्रॉप्स कैसे डेवलप होते हैं? ओके, सिमिलरली बीटी ब्रिंजॉल, देखो ब्रिंजॉल के कितने वैरायटीज हैं? इट्स ऑल ब्रिंजॉल, सोलानम मेलोंजिना, बट कितने वैरायटीज डेवलप हुए देखो। आनंदिता यू वर टेलिंग ना लाइट ग्रीन वाला, ये देखो। ये लाइट ग्रीन है, मैंने लाइट ग्रीन और वाइट भी देखा है। हाँ, आधा पच्चीस लाइट आते ग्रीन हैं, रहता यस। है, इवन आधा पर्पल में वाइट। भी कितने शेड्स है देखो, पर्पल में इलोंगेटेड वाला भी है, पर्पल में प्लम्प वाले भी हैं, एंड ये ग्रीन भी है लौकी जैसा, राइट? ये भी देखो लाइट पर्पल कलर, ये पैचेस वाले, सो मेनी वैरायटीज बट ओनली ब्रिंजॉल। ओके, ये सब बीटी क्रॉप्स है, मोस्ट ऑफ इट वी हैव डेवलप्ड। नेचर में वाइल्ड में सिर्फ ये पर्पल वाले ही मिलेंगे। ओके, देन गोल्डन राइस, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। गोल्डन राइस क्या है कि सी, राइस क्रॉप खाने से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। यस, राइस ग्रेन्स कंटेन लॉट ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इंडिया में in any corner of the country if you see, rice and wheat form a major part of our staple diet, कि रोटी वगैरह हर जगह खाते हैं, चावल भी हर जगह खाते हैं, करेक्ट? सो अभी साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्रॉप है जो अगेन मेनी पीपल दे कंज्यूम, एंड दैट इज कैरेट। अभी सीजन अच्छा है, कैरेट अच्छा मिल रहा है मार्केट में, राइट? सो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट व्हिच यू गेट फ्रॉम कैरेट प्लांट? कैरेट में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट क्या मिलता है बताओ? या ऐसे बोलते हैं कैरेट खाने से बॉडी के कौन से पार्ट के लिए सबसे अच्छा है? गाजर खाओ तो। विटामिन ए, यस, इट इज आईज के लिए विटामिन ए, अच्छा है। वेरी गुड फॉर द आईज, वेरी गुड, है ना? विटामिन ए का डेफिशिएंसी रहेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, तो गाजर खाओ तो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो दैट मीन्स इन द कैरेट प्लांट there is some gene which is responsible for producing the vitamin A. तो हमने कैरेट के प्लांट में से विटामिन ए प्रोडक्शन वाला जीन निकालकर वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इनटू द राइस क्रॉप। तो अभी वो राइस क्रॉप जब मैं ग्रो कर रहा हूं तो उसी राइस को खाने से उसका ओरिजिनल जो न्यूट्रिएंट था दैट इज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ मुझे विटामिन ए भी मिल रहा है। तो ऐसे राइस के वैरायटी जो हमने तैयार किया है दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस। ये ऐसे दिखते हैं देखो। तो हाउ इज इट यूजफुल नाउ? इफ यू आर गिवन ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए दोनों एक मिल ही रहे साथ हैं, मिल रहा है। बट ये बताओ मार्केट में गाजर कम मिलते हैं क्या, या इज इट टू कॉस्टली और समथिंग? यस, so do we actually need to do this? नहीं। बट एक फायदा नहीं। बोल सकते हैं, एक फायदा बोल सकते हैं, गाजर ग्रो करने के लिए मुझे अलग से एक फील्ड चाहिए, पैडी ग्रो करने के लिए अलग से फील्ड चाहिए। इन द बिगिनिंग वी डिस्कस दिस पॉइंट कि द लैंड एरिया इज गेटिंग रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर के लिए। तो अभी इसमें फायदा क्या हो गया, इन द स्मॉल लैंड एरिया मैं ऐसा प्लांट ग्रो कर रहा हूँ जिसमें मुझे 2 क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सर, बोलो। बट इंडिया में हम राइस के साथ हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही है ना, लाइक कोई वेजिटेबल या फिर दाल, सिर्फ राइस थोड़ी खाते हैं, तो बट इन अदर वे हमें वैसे भी मिल रहा है। बट दाल वगैरह अगर देखा जाए तो व्हाट इज द कॉस्ट? तूर दाल फॉर एग्जांपल क्या कॉस्ट है आजकल मार्केट में, कैन यू टेल? वो नहीं पता। तूर दाल आज ही मैंने खरीदा इसलिए मुझे पता है। तूर दाल अगर मार्केट से खरीदो 1 किलो का, यू आर गेटिंग इट अबाउट 110 to 120 रुपीज। तो कैन एवरीबडी अफोर्ड इट? नॉर्मली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि हम लोग दाल वगैरह बना के खा ही लेते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स इन दैट पल्सेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर, एंड उसमें मिल जा रहा है, मैं नॉट ना नहीं कह जस्ट रहा हूँ, से पल्सेस, दिस इज जस्ट एन इवन एडिशनल थिंग। ऐसा नहीं कि यही खाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा या समथिंग, नॉर्मल राइस भी खाओ तो ठीक है, बट फायदा क्या हो रहा है, दिस इज एन एडिशन। And if you think about that section of the people who are malnourished, जो बहुत मुश्किल से कुछ चावल मिल रहे हैं, आज भी अपने कंट्री में बहुत सारे जगह पर ऐसे लोग हैं
जो सिर्फ चावल के साथ जरा सा दूध वगैरह कुछ मिक्स करके खा लेते हैं बस, दे कैन नॉट एफोर्ड टू हैव दाल और वेजिटेबल्स और पल्सेस और एनीथिंग। बहुत सारे लोग हैं, इफ यू गो टू द ट्राइबल एरियाज एंड ऑल, यू सी पीपल व्हाट दे आर कंज्यूमिंग, वेजिटेबल के नाम पे आलू वगैरह लेते हैं बिकॉज सबसे सस्ते में वही मिलते हैं। तो फॉर सच पीपल दिस बिकम्स अ गुड ऑप्शन, कि उनको अलग से अगर कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो गोल्डन राइस ले लो, कम से कम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, कि when you are able to do this by biotechnology, you are increasing or enriching the nutrient value of an already existing crop. So there is nothing wrong, but एक है नेगेटिव पॉइंट अगर बोला जाए कि गोल्डन राइस जो है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो गया, नेचर में नहीं मिलेगा ऐसा। तो नेचर में इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि ओरिजिनल राइस क्रॉप्स इज गॉन। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्रॉप्स, कि जितना चाहिए हाइब्रिड या आर्टिफिशियल वैरायटी बनाओ, बट नेचुरल वैरायटीज को मेंटेन रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आनंदिता। ब्राउन राइस भी फिर हाइब्रिड होता है? यस, सी नेचुरली एग्जिस्टिंग राइस के बहुत वैरायटीज हैं इंडिया में, हर चीज के इतने वैरायटी है कि द डाइवर्सिटी इज एंडलेस। ओके, बासमती राइस वेरी फेमस फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, बट जो उकड़ा चावल है केरला का वो बहुत फेमस है। तो ये सब नेचुरल वैरायटीज है। गेटिंग इट? मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके देखो, राइस के कितने वैरायटीज मिलेंगे, गेहूं के कितने वैरायटीज मिलेंगे। ओके, यू टेल द शॉपकीपर कि मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए, वो पूछेगा 30 वाला कि 50 वाला। दैट इटसेल्फ टेल्स यू द वैरायटीज। गेटिंग इट? सो ये सब एडिशंस है। इट्स नॉट दैट कि अगर हमने गोल्डन राइस नहीं बनाया तो बहुत बड़ा लॉस हो गया समथिंग, बट these are all additions that one can do by biotechnology, which is not wrong. हाँ, अभी अगर ये कलर्स वगैरह के लिए बोलते हैं तो दिस कैन बी अवॉइडेबल, कि अगर ये पर्पल ब्रिंजॉल खाओ तो मुझे सब मिल जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलर, आई डोंट नीड टू क्रिएट एनी न्यू वैरायटी। कलर्ड कैप्सिकम जो मेरा प्लेट को सजाने में काम आएगा, दैट कैन बी अवॉइडेड बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू और इनहैंसिंग इट। बट ये अच्छा चीज है गोल्डन राइस। BT cotton, good thing, because you are increasing the yield of the cotton plants by keeping away the pest. So that is a very very important thing in research, कि इसका implication देखो, कि ऐसा कुछ हो जो mankind के लिए फायदा हो, having good medicinal property, having good nutrient property, so you can go for it. But only for decoration or aesthetic purposes if you are doing it, that can be avoided. उसके पीछे इतना resources waste नहीं करना चाहिए. That is something the researchers should understand. Just because we are able to do it, तो हर किसी के लिए करना है वैसा जरूरी नहीं है. That is also equally important. ठीक है? So understood about importance of genetically modified crops. Everyone, any doubt in this? Yes. So I think आज के लिए बहुत हो गया. Come on the video everyone for a minute. We'll stop here after this. Okay. So any doubt in whatever we discussed today? Everyone come on the screen for a minute. Yeah. So कैसा लग रहा है ये लेसन? एकदम तगड़ा, एकदम हैवी, बट देयर आर टू मेनी थिंग्स, राइट? एंड ये सिर्फ नॉलेज या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इवन करियर के लिए भी बहुत कुछ है इसमें, है कि नहीं? अभी तक उन लोगों ने बताया नहीं हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, करियर किसको किसको बायोलॉजी में बनाना है, या आफ्टर दिस लेसन नाउ यू आर चेंजिंग योर बाद थॉट्स? में देखेंगे, अच्छा, बाद में देखेंगे, अभी कुछ सोचा बाद में नहीं। कभी, बहुत ज्यादा लेट से तो नहीं सोचना है ना. You should start नहीं, thinking. इतना लेट नहीं, लेकिन एग्जाम एग्जैक्ट करियर तो अभी नहीं डिसाइड कर पाओगे, बट एटलीस्ट सम आइडिया कि किस लाइन में जाना है वो तो सोच सकते हैं ना. सोचो, स्टार्ट थिंकिंग, राइट? बिकॉज दिस इज द टाइम, आराम से सोचो. यू कैन ऑल्सो, व्हाट आई सजेस्ट इज अपना छोटा सा नोटपैड में ना लिखो, राइट योर ओन स्किल्स, योर लिमिटेशंस. ओके, नोबडी इज अ परफेक्ट.
हर किसी में अपना अपना एक बहुत अच्छा स्किल्स होगा, उसको हाईलाइट करो, नोट डाउन करो, अपना अपना लिमिटेशन क्लियर सोचो कि मैं कौन सा काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें जाना ही नहीं है। ओके, लाइक आई वाज वेरी क्लियर ड्यूरिंग माय टाइम कि मैथमेटिक्स फिजिक्स मेरे से नहीं जमने वाले। स्कूल कॉलेज तक पढ़ लिया बस, करियर में नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द बट सब्जेक्ट। साइंस में तो फिजिक्स आता है ना। आते हैं तो अप टू अ सर्टेन लेवल। मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद कभी फिजिक्स था ही नहीं मुझे, बिकॉज आफ्टर दैट आई नहीं था। डाइवर्सिफाइड, आई फोकस्ड इनटू बायोलॉजी। 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ना पड़ते हैं। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मैंने बॉटनी जूलॉजी ले लिया। फर्स्ट ईयर बीएससी के बाद केमिस्ट्री भी चला गया। आफ्टर दैट ओनली बायोलॉजी। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो सबका चाहिए ही चाहिए। ओके, इवन ड्यूरिंग माय पीएचडी मेरा एनाटॉमी में था, तो मुझे माइक्रोस्कोप यूज करने थे, तो मुझे फिजिक्स का नॉलेज पढ़ना पड़ा, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ा। दैट वाज हेल्पफुल इन रिसर्च। तो बेसिक नॉलेज सबका होना ही चाहिए, बट यू सिलेक्ट वन एंड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। गेटिंग इट? तो इसलिए बेसिक नॉलेज को कभी इग्नोर मत करो। अप टू 12th स्टैंडर्ड वॉट एवर यू स्टडीज ऑल बेसिक, वो स्ट्रॉन्ग रखो, इट हेल्प्स अ लॉट। गेटिंग इट? मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज किया था। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पूरा फिजिक्स है, राइट? तो ऑप्टिक्स एंड ऑल वो सब पढ़ना पड़ता है माइक्रोस्कोपी में, तो वो सब फिजिक्स है, बट वो एप्लीकेशन बायोलॉजी में है उसका। तो ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, नेवर इग्नोर एनीथिंग। यहाँ पे तो इनफैक्ट मैं बोलता हूँ लैंग्वेजेस को भी फोकस करो, वोकेबुलरी इज अ मस्ट, बिकॉज आगे चल के तुम लोग को प्रेजेंटेशंस देना है, रिपोर्ट्स लिखने हैं, तो फॉर दैट यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। गेटिंग इट? आई डिडंट गॉट माय बुक ऐसे सब बोलेंगे तो नहीं चलेगा। गेटिंग इट? यू शुड बी वेरी गुड विथ लैंग्वेज, दैट्स अ मस्ट। तो फोकस करो, ठीक है? तो वी विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। प्रिपेयर करो एंड मैंने पेपर पैटर्न भेज दिया, सबने देख लिया तुम लोग ने? 60 मार्क्स का पेपर, इट विल बी नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर। ओके, होप टू बी अ सर बेटर ईयर नाउ। बोलो। उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका पूरा सेंटेंस और वर्ड Yes, लिखना है या पूरा फिर लिखना है, जस्ट आंसर? कंप्लीट सेंटेंस, एंड आंसर को अंडरलाइन या बॉक्स करो क्लियरली। और वो सेकंड क्वेश्चन था ना, समथिंग एनालॉजी, कंप्लीट एपोलॉजी द करके, एनालॉजी। यस, वो एनालॉजी। हाँ, एनालॉजी, कंप्लीट द एनालॉजी का वो मतलब है, यू नो व्हाट इज एनालॉजी? मतलब ओके, सी फॉर हाँ एग्जांपल, आई से क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्नेहा कॉलन गर्ल, डबल कॉलन प्रणव कॉलन हैश, आंसर विल बी बॉय। So you ओके। have to correlate an answer like that. Okay. Listen. Any other doubt? तो प्रिपेयर करो अच्छे से द फर्स्ट 3 लेसन्स एंड नेक्स्ट संडे को उसका टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वीक आई विल टेक सम मोर लेक्चर्स। देखता हूँ ये लेसन थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में ही जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। डायग्राम्स कितने होंगे? मैंने 10 मार्क के लिए बोला ना डायग्राम्स, हाँ तो ओनली 5। 5। ठीक है, 2 मार्क्स के। सो नीटली करो, लेबलिंग वगैरह अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ओनली 5 सर? हाँ वो ओनली बोलने का आदत हो गया जरा। ओके, या अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो डायग्राम्स। एंड गर्गी थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है एवरीवन। एंड ये दीक्षा पता नहीं क्यों रेस्पॉन्स ही नहीं करती बिल्कुल। एनीवेज आई कांट हेल्प इट। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। बाय। बाय।